morning children. Welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet My Bits and Bytes computer series 2. Children, in our previous video we were studying chapter 9, that is fun with paint. We have learnt all the tools of paint program. Today we are going to revise the chapter and then we will be doing book exercises of chapter 9. So children, let us start chapter 9. So children, by now I hope you have understood all about MS Paint. So children, in this chapter we have studied about paint screen, rounded rectangle tool, polygon tool, curve tool, text tool, saving image and opening image. So children, in this chapter till now you have learnt all about toolbox and tool color. As we know children, we do all the drawing and painting using the toolbox and tool color. So let us see. So children, this is, as we know, this is MS Paint screen shown on your screen. Here is MS Paint screen. As we know, starting from here, this much is toolbox. We call it as tool box. हम इसको टूल बॉक्स कहते हैं और उसके बाद जहाँ पे हमें कलर दिखाई दे रहा है इसको हम कलर बॉक्स कहते हैं, कलर बॉक्स. And using these toolbox children, we draw all the drawings. As we can see in the chapter, we have oval shape, rectangular shape, then we have stars, we have line, we have curve shape, and also we have rounded rectangular shape. All these shapes we draw using the toolbox. We had done by sharing the screen also of MS Paint. हमने करके भी देखा था और आपको करके भी दिखाया था किस तरह से हम एक एक टूल को यूज़ करते हैं, और बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. सो चिल्ड्रन, लेट अस सी. सो चिल्ड्रन, this is MS Paint screen. Now mark these tools with crayons that you have that you have learnt in your earlier classes. So children, here are, this one is the paint tool. As you can see on the screen, this is the tool bar. This complete is the tool bar which is present at the topmost part of the MS Paint screen. सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार होता है, जैसा कि हम रेड बार में यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल बार है, और उसके नीचे जो सबसे पहली चीज़ हमको मिलती है वो है tools. And in these tools we have two types of tools. One is tool box and the other one is color box. दो तरह के tools हैं. टूल बॉक्स को यूज़ करके हम ड्राइंग करते हैं और कलर बॉक्स को यूज़ करके हम कलरिंग करते हैं. Now, so I hope you were able to recall the tools you have studied earlier. Last year also you have studied children. In class 1 also you have studied these tools. So you have you were already knowing about these tools, and then we have learnt in this chapter also. So by now you must have understood about these tools and you have understood the uses of these tools also. So firstly let us revise whatever we have studied. So here is the rounded rectangular tool. So children, as you can see on your screen, this is rounded rectangle tool shown with the red box. इसे हम rounded rectangle बोलते हैं क्योंकि rectangle का जो corner है rounded है, pointed नहीं है, इसलिए हम इसको rounded rectangle बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने size choose किया. This is size. Whichever line you want to choose, you can choose from this size setting, या width line की आप choose कर सकते हो. फिर उसके बाद आप ये ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन एंड सीन, एंड स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो लाइक दिस चिल्ड्रन. फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द होम बटन. सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, फाइल के बगल में हमारे पास होम बटन है. वी क्लिक ऑन होम बटन, क्लिक ऑन राउंड रेक्टेंगल शेप. उसके बाद हम राउंडेड रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करते हैं. फिर क्लिक ऑन साइज बॉक्स. फिर हम साइज बॉक्स के ऊपर उसकी विड्थ को सेट करते हैं एंड देन वी सेलेक्ट द विड्थ ऑफ द लाइन.
फिर हम माउस को ड्रैग करते हैं, वी ड्रैग द माउस, और उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल टूल हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है. सो इन 5 स्टेप्स वी ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगल टूल. दिस इज़ वन ऑफ द टूल प्रेजेंट इन टूल बॉक्स. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज़ polygon. As you know children, firstly for polygon again we click on home. हम फिर से home के ऊपर क्लिक करते हैं. home के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम, so children here is polygon. You can see this is polygon. As it is shown on your screen children, this is polygon and it is somewhat like this. It is somewhat like this. Okay, now this shape children, if you want to draw this shape, what will you do first? सबसे पहले आप पॉलीगन पे क्लिक करेंगे जो कि टूल बार में दिया हुआ है, और उसके बाद जब आप पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस. सबसे पहले यू विल ड्रॉ दिस लाइन यूजिंग दिस शेप, और उसके बाद चिल्ड्रन आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टैप करेंगे तो इसके आगे लाइन जुड़ती जाएगी. फिर यहाँ टैप भी करेंगे तो इसके आगे लाइन जुड़ जाएगी. फिर यहाँ टैप करेंगे, कहीं पे भी स्क्रीन पे हम टैप करेंगे इसके आगे आगे लाइन जुड़ती जाएगी. और उसके बाद जब हम इस फिगर को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, वी वांट टू एंड दिस फिगर, तो हमें यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये फिगर क्लोज हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ polygon. So let us see how we draw polygon. Children, suppose you want to draw a polygon and you have taken this line. आपने ये लाइन बना लिया है, एक यहाँ पे लाइन आपने बनाया, then you will click here, you will get another line here. कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जहाँ पे उस लाइन को टच करके ही क्लिक किया. अगर हम उस लाइन को बिना टच किए भी क्लिक करते हैं तो वी विल गेट एक लाइन यहाँ किया. अगर हम उसके बगल में या कहीं पे भी स्क्रीन में करते हैं, हमको एक उससे जुड़ी हुई लाइन मिल जाएगी. लेकिन जब हम इसको बॉक्स को हमको बंद करना है, अगर हम वी वांट टू क्लोज दिस बॉक्स, तो हमको क्या करना होगा? वी हैव टू गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ जाएंगे और फिर हम क्लिक करेंगे तो हमको एक क्लोज्ड फिगर मिल जाएगा, यानी कि हमें एक polygon मिल जाएगा. So children, you try this. It is very interesting. Drawing a polygon is very interesting because we don't need to adjust the cursor or we don't need to control the cursor. Simply आप क्लिक करोगे, आपको ऑटोमेटिकली लाइन ऐड होती जाएगी. ओनली द थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर कि जब लास्ट में हम क्लोज करने जा रहे हैं फिगर को, दैट टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैड स्टार्टेड. आपको उस पॉइंट पे क्लिक करना होगा जहाँ से आपने शुरू किया था. तो पॉलीगन बनाने में बहुत मज़ा आता है. सबसे पहले एक डंडी हम बनाएंगे, फिर उसके बाद डंडी के बाद हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, उसके आगे आगे लाइंस जुड़ती जाएंगी. लेकिन जब हम उस फिगर को हमको क्लोज करना है, हमको लास्ट लाइन बनानी है, तो हमको उस पॉइंट से क्लिक करना होगा जहाँ से हमने शुरू किया था. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक पॉलीगन ऑल्सो. तो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द टूल बार द पॉलीगन. यू कैन सी हियर ऑल्सो फॉर मेकिंग अ पॉलीगन यू हैव टू गो टू होम बटन. सबसे पहले आपको होम बटन पे जाना पड़ेगा, विच इज़ जस्ट बिसाइड द फाइल. तो ये होम बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरा मेन्यू खुल जाएगा. क्या खुलेगा? टूल बॉक्स और कलर बॉक्स. उसके बाद सेकेंड स्टेप में यू विल क्लिक ऑन पॉलीगन शेप है, उस पर क्लिक करेंगे. देन यू विल साइज द बॉक्स, क्लिक ऑन द साइज बॉक्स. जब भी हम कुछ बनाते हैं वी विल क्लिक ऑन, बिफोर ड्राइंग इट ऑन द स्क्रीन और ऑन द पेपर, the drawing area given, हम we will set the size or the width of the pencil. हम pencil का जो width है उसको set करेंगे. So you will set the width of the pencil. This is fourth step, and press the left button. Always you will press the left button and then drag the mouse. जब mouse को drag करेंगे तो you will get the figure whichever you want to make. Now release the mouse button to make a line. और फिर इस माउस बटन को जब हम रिलीज़ करेंगे लाइन बनाने के लिए तो हमें एक लाइन मिल जाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक पॉलीगन. फिर उसके बाद वेर एवर यू क्लिक ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन यू विल गेट वन लाइन एडेड. बट जब आपको फिगर को क्लोज करना है तो आप उस पॉइंट पे जाओगे जहाँ से आपने शुरू किया था. तो यहाँ पे नाउ क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग पेज. जैसा कि मैंने बताया, आप ड्राइंग पेज पे कहीं पे भी क्लिक करोगे आपको एक एक लाइन पॉलीगन में ऐड होती जाएगी. उसके बाद रिपीट द स्टेप 7 स्टेप जो है क्लिक ऑन द ड्राइंग शीट को आप रिपीट करते जाएंगे. जितनी आपको लाइंस पॉलीगन में बनानी है उतनी बार आप क्लिक करते जाओगे. उसके बाद जब हम उसको क्लोज करना है शेप को, देन
नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जब हमको क्लोज करना है फिगर को तो वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन and there the figure will be closed and you will get a proper polygon. So this is how you will draw polygon. Now children, after that we have curve tool. As you have seen curve tool, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, practically I had done and shown it to you. ये जो curve tool होता है, it is just like a, ये ऐसा कुछ बना होता है, इस तरह का कर्व टूल होता है। और जब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है, लेकिन फिर बीच से हम उसको पकड़ के थोड़ा सा पुल करते हैं तो एक कर्व लाइन बन जाती है। अगर हम इस साइड को पुल करेंगे तो इस साइड को बनेगा, इस साइड को करेंगे तो इस साइड को बनेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप को उसको पुल कर रहे हो और पुश कर रहे हो। अब जिधर भी आप उसको मोड़ना चाहें आप आराम से मोड़ सकते हो। अब हाउ यू विल मेक दिस, हियर ऑल्सो यू विल फर्स्ट क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन होम टैब, then you will click on the curve tool जो कि टूल बॉक्स में दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर क्लिक ऑन द साइज बॉक्स, जैसा कि मैंने बोला whenever you are making any shape you will click on the साइज बॉक्स। आप साइज बॉक्स पे वहाँ से विड्थ चूज़ करोगे। विड्थ करने के बाद you will click on माउस, you will click on लेफ्ट बटन ऑफ माउस। माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे। जब आप माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन को आपको जिस साइड में कर्व करना है उस साइड में आप थोड़ा सा पुल करोगे तो यू विल गेट अ शेप लाइक अ कर्व। वहाँ पे आपको एक शेप मिलेगा लाइक दिस। जैसे कि सपोज यू हैड ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन, आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई थी, आपने जब इसको यहाँ से यहाँ पुल किया तो आपको ये वाला शेप मिल गया। सो इन दिस वे यू विल गेट अ कर्व लाइन। दिस ऑल्सो वी हैव डन प्रैक्टिकली, हमने कल स्क्रीन शेयर करके ये भी करना सीखा था। देन वी हैव टेक्स्ट टूल। सो चिल्ड्रन, हियर इज टेक्स्ट टूल। एज यू कैन सी दिस इज टेक्स्ट टूल। द टेक्स्ट टूल इज शोन बाय कैपिटल ए। जो टेक्स्ट टूल आपका है वो हमें कैपिटल ए से शो किया हुआ है। तो अगर हमको टेक्स्ट टूल करना है तो हम टेक्स्ट को पहले चूज़ करेंगे, ए को, जो ए कैपिटल ए है जो कि यहाँ पे है, यू विल चूज़ दैट। फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे और एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कर्सर दिखाई, ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देगा जिसे हम कर्सर कहते हैं। फिर जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे दैट विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द कर्सर, वहाँ से वो स्क्रीन पे आपको लिखना दिखाई देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एनीथिंग। सी हियर यू कैन सी कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने ए पे क्लिक किया, एरिया सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिख करके शो कर रहा है, टेक्स्ट टूल शो कर रहा है। और वॉट एवर यू टाइप will be written on in the area which is you have selected. The area which you have selected on the screen, you can see this area. अब यहाँ पे जहाँ पे कर्सर ब्रिंग कर रहा था वहाँ से लिखना शुरू हो जाएगा और यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। उसके बाद अब इमेज आपने बना लिया, कोई भी ड्राइंग आपने बना ली है, यू वांट टू सेव दैट ड्राइंग। इफ़ यू वांट टू सेव दैट ड्राइंग यू विल ओपन, यहाँ पे फाइल मेन्यू है, ये है फाइल मेन्यू। हमने ये किया था चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन इट ट्वाइस, हम 2 बार इसको कर चुके हैं। ये फाइल पे आप क्लिक करोगे। अगर यू आर सेविंग द इमेज फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार सेव कर रहे हो तो यू विल सेव एज पे सेव करोगे तो आपको एक विंडो खुलेगा। उस विंडो में इट विल आस्क फॉर द नेम, अनटाइटल्ड जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप नेम लिखोगे। उसके बाद नीचे सेव होगा, वहाँ से यू विल सेव और वो सेव हो जाएगा। और अगर यू आर सेविंग, ओपनिंग एंड सेविंग इट सेकेंड टाइम, एक बार ऑलरेडी सेव कर लिया है तो सेव एज से किया, और एक बार नेम कर दिया है, दोबारा उसको सेव करना है तो आप ये वाला सेव पे करोगे। सेव एज के ऊपर जो सेव है उस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो फिर से दोबारा जो भी आपने उसमें करेक्शन किया इट विल गेट सेव्ड। जो भी इसने आपने इमेज बनाई थी वो सेव एज से सेव कर लिया, उसका नेम कर लिया। लेकिन उसके बाद आपको दोबारा खोल के कुछ करेक्शन करना था या एडिट करना था तो आपने दोबारा किया तो यू विल यूज़ सेव, SAVE, सेव, एंड दैट इमेज विल गेट सेव्ड इन योर डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद वापस इफ़ यू वांट टू ओपन इट यू विल, यहाँ पे देखो यू कैन सी दिस स्क्रीन। जब आपने वहाँ पे सेव एज चूज़ किया तो यहाँ पे आपने को नाम पूछा, फाइल नेम, तो आपने माई नेम लिखा। माई नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया सेव पे, योर फाइल गेट्स और इमेज गेट्स सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट। और फिर वापस जब आपको बनाना है
तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आपको वो सारी फाइल देगी जो भी आपके कंप्यूटर में सेव्ड है। तो उसको आप क्लिक करोगे और खोल सकते हो। यू कैन ओपन द फाइल। यहाँ पे यू कैन सी ओपनिंग द स्क्रीन। अब ओपनिंग हमको करना है तो वापस हम फाइल में जाएंगे चिल्ड्रन। विल गो टू फाइल। एज यू कैन सी फाइल शोन हियर। इस फाइल पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमको ओपन, ये ओपन वाला ऑप्शन आएगा। ओपन करेंगे तो हमको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें जितनी भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव्ड है वो सब हमको दिखाई देगी। जो भी हमको खोलना है वी विल चूज़ दैट फाइल और उसको फिर हम खोल करके उसमें हम जो भी एडिट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। देखो इतनी सारी फाइल्स खुल गई। अब हमको खोलना क्या है, हमको माई इमेज, हमने भी सेव किया था माई इमेज, हमको माई इमेज खोलना है। हम इस पर क्लिक करेंगे और माई इमेज खुल जाएगा। सो चिल्ड्रन यहाँ पे ओपन करेंगे इमेज सेलेक्ट करने के बाद और वो इमेज खुल जाएगी। इन दिस वे यू कैन सेव द इमेज। हमने बनाना सीख लिया, टूल्स यूज़ करना सीख लिया, सेव करना सीख लिया एंड फिर उसको वापस खोलना भी सीख लिया। सो वॉट एवर इज गिवन इन द चैप्टर वी हैव डन प्रैक्टिकली ऑल्सो एंड वी हैव रिवाइज्ड इट थ्रू द book also, chapter also. So children, let us come to our next topic, that is self-evaluation. This also we have studied yesterday. Children, self-evaluation means whatever you have studied in the chapter, you are going to evaluate yourself how much you have studied. So our first evaluation है बच्चों, I have learned that paint has different tools which help us to draw different shapes and figures. So children, अभी टूल बार में हमने बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे rectangle, circular, rounded rectangular shape. Then we studied, we saw curve, straight line, circle or oval. Then we saw stars. So different shapes we saw. So that is what it is written here. I have learnt that paint has different tools which help us to draw different shapes and figure. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या समझा हमने चैप्टर से, कि जो पेंट प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं और वो टूल किस में होते हैं, टूल बॉक्स में होते हैं एंड दीज टूल्स कैन बी यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स. सो आई एग्री with this statement. I have learnt this statement from the chapter, so you will put a tick in front of or below agree. In the chapter we have learnt about many tools and we have also learnt that using these tools we can draw different shapes and figure. इन tools को use करके हम अलग अलग shapes और figures को draw कर सकते हैं. So children, MS Paint is a paint program in which using the different tools we can draw different shapes and using different colors we can color these shapes. So this is what we have understood from the chapter. Now children, statement 2. In statement 2 we have, I know that curve tool is used to draw curves. So children, as we have studied in the chapter that the curve tool is used for making different curves. Of course children, curve tool is used for making different types of curves or whichever type of curve is needed we can use that curve tool to draw the curve. So here this is also true. I know that with the help of text tool we can type text in the paint window. I know that with the help of text tool we can type text in the paint window. So children, as we have studied text tool A, capital A. When you choose टेक्स्ट टूल आपको एक नया टूल बार खुलता है और वहाँ से आप टेक्स्ट टूल यूज़ करके you can select an area on the screen and you can write. In the area you can see the cursor showing with blinking line और whatever you type from the keyboard, जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो वो ब्लिंकिंग लाइन से टाइप होना स्क्रीन पे शुरू हो जाता है. तो अगर ड्राइंग के बीच में आपको कुछ लिखना है तो आप आराम से टेक्स्ट टूल को यूज़ करके लिख सकते हो. सो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस यूजिंग द screen
स्क्रीन को यूज़ करके भी हमने किया है, प्रैक्टिकली भी हमने किया है, और हमने बुक से भी पढ़ करके समझ करके ये किया है. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. फिर आई नो दैट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल वी कैन टाइप टेक्स्ट इन द पेंट विंडो. आई नो दैट with the help of text tool we can write text in the paint window. Yes of course children, हम text tool को यूज़ करके हम विंडो में टेक्स्ट लिख सकते हैं, पेंट विंडो में टेक्स्ट लिख सकते हैं. हम ड्राइंग के साथ साथ अगर हम किसी चीज़ को लेबल करना चाहते हैं, हम किसी चीज़ की हेडिंग डालना चाहते हैं, या हम कोई डायलॉग लिखना चाहते हैं, या हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो वी कैन राइट दैट मैसेज यूजिंग द टेक्स्ट टूल. तो आई होप दिस also you have understood. I have learnt that rounded rectangle tool is used to draw rectangle and square with rounded corners. So children, as we know, rounded rectangle tool या rectangle tool is used to draw either rectangle या फिर square. rectangle shape से हम square भी बना सकते हैं और हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं. उसके अलावा जो राउंडेड रेक्टेंगल है, जिसके जो वर्टिसेस हैं या फिर कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होते हैं, उसको भी यूज़ करके हम राउंडेड रेक्टेंगल या राउंडेड स्क्वायर बना सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर. So children, with this we have come to the end of the chapter. I hope you must have understood how to draw and paint in the paint program. And children, you will learn more and more drawing and painting only when you practice. So when you do hands-on practice, you will learn more about this MS Paint. क्योंकि आप नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से किसी भी टूल को यूज़ नहीं कर सकते. सो यू फर्स्ट practice and then so that you can make beautiful drawings. So children, our next question is book exercise. हमारा अगला क्वेश्चन है book exercise. Here we have question number A. In question number A, children, we have tick the correct answer. As we have question number A as tick the correct answer in every chapter. So here also we have some questions given under this question, that is question number A. This is question number A. Tick the correct answer. Tool used to write your name within a drawing. So children, which tool is used for writing within a drawing? अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, क्योंकि हमें हम पेंट से ड्राइंग ही बनाते हैं, उसके बीच में आपको कुछ लिखना है, तो आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? ये रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करोगे, दिस A यू विल यूज़, और दिस पॉलीगन टूल यू विल यूज़. कौन सा टूल यूज़ करोगे? चिल्ड्रन, फॉर राइटिंग अ टेक्स्ट मतलब रिटन, कुछ एनीथिंग टू राइट, चाहे नाम लिखना है, चाहे कुछ भी लिखना है, यू विल यूज़ दिस टेक्स्ट टूल. इसको हम टेक्स्ट टूल कहते हैं. कैपिटल A. टेक्स्ट टूल का मतलब होता है, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी हम अपने स्क्रीन के ऊपर या ड्राइंग एरिया में लिख सकते हैं. सो टूल यूज टू राइट योर नेम विद इन अ ड्राइंग इज टेक्स्ट टूल, एंड टेक्स्ट टूल इज रिप्रेजेंटेड बाई या शोन बाई कैपिटल A विद इन अ बॉक्स. एक बॉक्स में कैपिटल A लिख करके हमें दिखता है, इसे हम टेक्स्ट टूल कहते हैं. एंड यूजिंग दिस टेक्स्ट टूल वी कैन राइट एनीथिंग इन द ड्राइंग एरिया और इन बिटवीन द ड्राइंग. सो दिस फर्स्ट वन इज ऑप्शन B, दैट इज टेक्स्ट टूल. एंड टेक्स्ट टूल को पहचानना है तो हम कैपिटल A को देख करके पहचानेंगे. नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. A tool used to draw a shape with any number of sides. A tool used to draw shape with any number of time. Can you tell me children what is that? Is it rounded rectangle? Is it rectangle? Or is it polygon? It is polygon. अगर हमको कोई भी शेप बनाना है जिसमें कितनी भी साइड्स हैं, अनकाउंटेड साइड्स हैं, तो हम पॉलीगन टूल को यूज़ करेंगे. एंड दिस पॉलीगन टूल इज़
shown by this symbol। इस तरह का सिंबल बना होता है, इसे हम पॉलीगन टूल कहते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा शेप बनाना है जिसमें कितनी भी साइड हो सकती है, एज आई टोल्ड यू पॉलीगन बनाने में मज़ा भी आता है। हम स्क्रीन एक लाइन बनाने के बाद हम कहीं पे भी स्क्रीन में क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जा कर के पॉलीगन के साइड से जुड़ते जाता है। लेकिन हमको पॉलीगन को क्लोज करना है तो हमको जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो वो शेप क्लोज हो जाता है। तो किसी भी शेप को हम तभी शेप कहते हैं जबकि वो क्लोज्ड फिगर होता है। तो हियर पॉलीगन को भी बनाने के लिए वी हैव टू मेक अ क्लोज्ड फिगर। और सबसे पहले वी सेलेक्ट दिस टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। फिर उसके बाद एक लाइन बनाते हैं हम। लाइन बनाने के बाद हम स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक एक लाइन जा कर के उससे जुड़ती जाती है और शेप बनते जाता है। लेकिन वो शेप तब क्लोज होगा, तब वो एक फिगर बनेगा जबकि यू गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्लिक देयर। जब लास्ट में हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो फिगर बंद हो जाता है। एंड इन दिस वे वी गेट अ शेप विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीगन। क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप्स साइड्स होते हैं इसलिए हम उसको पॉलीगन कहते हैं। एनी शेप हैविंग मेनी साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अब आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। टूल यूज टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल। अगर हमें राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है तो हम राउंडेड रेक्टेंगल वाला टूल बॉक्स से चूज़ करेंगे। रेक्टेंगल बना होगा जिसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं उसको हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। तो अगर हमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल बनाना है तो हम उसी फिगर को चूज़ करेंगे। तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। नाउ दिस इज ऑल विथ क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन। लेट अस रिवाइज। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। टूल यूज टू राइट योर नेम विद इन अ ड्राइंग। अगर हमें अपना नाम ड्राइंग में लिखना है, मेड बाय समवन हम लिखते हैं ना, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम कॉर्नर में अपना नाम लिखते हैं। तो इफ़ यू वांट टू राइट योर नेम इन पेंट प्रोग्राम drawing, whatever you have image or the drawing you have drawn in paint program, so you can select text tool. Text tool is shown in the text toolbar or tool box with capital A. As you can see on your screen, option number B is a text tool which is shown by capital A. So उसके सामने आप टिक करोगे और आंसर हो जाएगा कैपिटल। आंसर इज कैपिटल ए, शोन बाय कैपिटल ए, टेक्स्ट टूल। हमें जब भी टेक्स्ट लिखना है ड्राइंग के अंदर या ड्राइंग एरिया में तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। नाउ सेकेंड वन चिल्ड्रन, टूल यूज्ड टू ड्रॉ अ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड्स। मीन्स आपको कोई ऐसा फिगर ड्रॉ करना है जिसके एनी नंबर ऑफ साइड्स हो, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। सो यू हैव टू सेलेक्ट पॉलीगन टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, जो कि आपको यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दिस इज पॉलीगन टूल फॉर ड्राइंग अ शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन, एंड यू हैव टू चूज दिस पॉलीगन टूल विच इज गिवन ऑन ऑप्शन बी, एट द ऑप्शन बी, एंड ड्रॉ a figure having any number of sides. Tool used to draw a rounded rectangle. Tool used to draw a rounded rectangle. So here you will choose a tool which has rounded rectangle or which is shown by rounded rectangle, and it is given in tool box. From there you will choose. Here is the tool, this rectangle, the rectangle shown in the box has rounded corner. So when you choose this and drag the mouse on the drawing area, you will get this kind of shape which is called rounded rectangular shape. So children, in all the questions we have option B as answer. Question number 1 may be option B is the answer, question number 2 may be option B is the answer, and question number 3 maybe we have B as the option. So children, coming to next question. Our next question is true and false. Our next question is true and false. So children, first question हमारा जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, write T for true and F for false statement. In this you are going to read out the statement and you are going to tell whether it is true or false. Text tool is used to delete a drawing. Children, how this text tool is used? Is it used for deleting a drawing? जो आप ड्राइंग बनाते हैं उसको डिलीट करने के लिए टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हो? No, we use text tool to write something on the
ड्राइंग एरिया, हमें ड्राइंग एरिया में कुछ लिखना होता है, कुछ टाइप करना होता है, तो हम टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू विल राइट कैपिटल F इन द बॉक्स गिवन हियर. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे कैपिटल F लिखोगे. नाउ यू कैनॉट टाइप टेक्स्ट इन पेंट प्रोग्राम. Is it so, children? You cannot type text in a paint program? Of course you can type. You can type text using the text tool in the paint program. So this one is also false. इसमें क्वेश्चन का मतलब है, क्या आप पेंट प्रोग्राम में कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो? इसमें दिया है कि पेंट प्रोग्राम में आप कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो. हमने तो पढ़ा है कि लिख सकते हैं, हमारे पास टूल भी है जिसे हम टेक्स्ट टूल कहते हैं, इसलिए वी कैन राइट एनीथिंग इन द पेंट प्रोग्राम. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम अगर चाहें तो पेंट प्रोग्राम के स्क्रीन में या ड्राइंग एरिया में कुछ भी लिख सकते हैं. अपना नाम लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, और किसी चीज़ को पॉइंट करना है या लेबल करना है वो भी हम कर सकते हैं. सो सेकेंड वन इज़ ऑल्सो false. Polygon tool is used to draw triangle. Polygon tool is used to draw a triangle. Children, polygon का मतलब होता है a figure with many sides, और triangle में as we know tri means 3, we have 3 sides. So children, this statement is also wrong. So you will write here F, क्योंकि polygon का मतलब होता है figure with many sides, और अगर आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है तो आपको ट्रायंगल चूज़ करने की, अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो आपको पॉलीगन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलीगन में मेनी साइड्स होते हैं और ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइड्स होते हैं. तो अगर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो व्हाट विल यू चूज़? यू विल चूज़ द शेप ट्रायंगल और द टूल ट्रायंगल विच इज़ गिवन इन द टूल बॉक्स. सो दिस इज़ फॉल्स. थर्ड वन इज़ फॉल्स. नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, curve tool. Children, we have studied about curve tool also. Curve tool is used to draw a straight line. As the name indicates, curve tool है तो straight line क्यों draw करेगा? Curve tool है तो curve line draw करेगा. So this statement is also false. So children, all the statements are wrong. So here in this question number B, we have all the statements wrong. First वाला भी wrong है कि tool box is used to delete drawing is wrong. You cannot type text in paint program is also wrong, and polygon tool is used to draw triangle is also wrong, and curve tool is used to draw straight line is also wrong. So you will write false in and all the statements in front of all the statements. And children, this is all for today's class. We have completed the chapter, we have revised the chapter, and then we did self evaluation and question number A and B. So today we end this video, and I hope children you will read whatever we did in the class today. So thank you. We will meet tomorrow in our next